All right, guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Now, we'll start with holding company, जो हमने first class में सीखा था in lecture 2 today. In lecture 2 today, we will learn how to solve the questions. So if I recall what we did in the last class, one of the important thing was the date of acquisition plays an important role in dividing the profits between pre-acquisition and post-acquisition profits. Second thing, pre-acquisition profits, by whatever name called, are taken into account while calculating cost of control as far as holding company's share in that profit is concerned. Holding company share in post-acquisition profit is shown in the consolidated balance sheet. And as far as minority interest is concerned, whether it is pre-acquisition profit or post-acquisition profit, whether it is pre-acquisition profit or post-acquisition profit, both will be shown in minority interest under the head non-controlling interest. जो मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने पहले रिकॉल करने की कोशिश की. Now, let's look at the question. Illustration 3 we will begin with. Following is the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited on 31st March 2020. Prepare a consolidated balance sheet. Balance sheet नहीं बनवाऊंगा मैं, वो तो पहले भी मैं नहीं बनवाता. Main working note इसमें से बनाना सिखाऊंगा. When I look at the question, I have seen investment. जल्दी मत करना बच्चों. Investment in shares of S Limited. इसको मत देखो अभी. Leave it. Investment in shares of S Limited being 5 lakh shares. Subsidiary company. Share capital is rupees 5 lakh. Subsidiary company, which is S Limited in this question, share capital is rupees 5 lakh. The value of one share is 100. Number of shares of S Limited means 5 lakh of 100 each. It means 5,000 shares. I first want to know how much is the total number of shares of S Limited. They are 5,000. Now, holding company H Limited has acquired all the 5,000 shares, meaning thereby 100% होल्डिंग कंपनी. ये मैं अपने मन में बोल रहा हूं, पेपर में लिखने का जरूरत नहीं है. नो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. दिस इज द फर्स्ट थिंग which comes to my mind. Second thing, the date of acquisition plays a very important role. We are acquiring the company on 31st March 20. Date of acquisition 31st March 20, and even balance sheet date is also 31st March 20. And this is the date till which all profits are called pre-acquisition. Pi stands for profit. यानी इस क्वेश्चन में no post profits. I repeat, the date of acquisition plays an important role in deciding the pre and post acquisition profit, since the control is acquired on the last day of the financial year. Since the control is acquired on the last day of the financial year, all my profits will be termed as pre-acquisition profits, and hence there is nothing called post-acquisition profits. यहां तक किसी को कोई डाउट? Let me go further. यहीं पे कर देता हूं. मुझे बस एक ही चीज निकालना है, क्या? Computation of COC. COC stands for
cost of control. Computation of COC, and COC stands for cost of control. My steps आपके पास हैं. Gross cost of investment. मैंने कितने शेयर्स खरीदे वो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं. What matters to me is now कितने के खरीदे. I purchased these shares for rupees 6 lakh. So my gross cost of investment is 6 lakh. इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है. इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में अगर एसेट साइड पे फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन लॉसेस नहीं है. बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ accumulated losses. Okay. Less paid up share capital. सारे शेयर्स किसके पास हैं? होल्डिंग के पास. तो पूरी की पूरी पेड अप शेयर कैपिटल में यहीं से माइनस करूंगा. देन क्या इस क्वेश्चन में सब्सिडरी कंपनी के कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? हाँ है. 20,000, 50,000. And any profit till the date of acquisition is called Pre-acquisition profit. And pre-acquisition profits are taken into account while calculating COC. And that's the reason मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. My result is positive, so we'll call it as Goodwill. we will call it as Goodwill. So far so good. Yes. Now while you will make consolidated balance sheet, इधर देखना बेटा, आप ध्यान देना क्योंकि मैं वो यहीं पे दिखा दूंगा, मेरे को और कुछ करने को है ही नहीं. When you will make consolidated balance sheet, आप इन तीन चीजों को और इसको न्यू जो कंबाइंड बैलेंस शीट बनाओगे उसमें शो नहीं करोगे. थैंक यू. तो एसेट साइड पे सिर्फ क्या आएगा? H लिमिटेड और S लिमिटेड के एसेट्स, विच इज टोटल वाइज 13 लाख Yes, sir. 20,000. 20,000. 13 लाख 20,000. Is this clear? रुक जाओ मैं आराम से बताऊंगा. मैं ओल्ड बैलेंस शीट में से बता रहा था बेटा, उसमें से और कुछ नहीं आएगा. करेक्ट? Yes, sir. एंड हमने अभी कैलकुलेट किया गुडविल विच इज अ इनटेंजिबल एसेट, उसको आप इनटेंजिबल एसेट में शो कर दोगे ₹30,000. योर एसेट साइड इज ओवर. नोट्स टू अकाउंट देखते रहना यार, मैं पहले बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं. किसी को कोई डाउट? No doubt. रिदिम, सुयश, आरके? No doubt, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट सुयश, जब मैं बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाऊंगा तो सिर्फ कितनी दिखाऊंगा? 10 lakh. अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस दिखाऊंगा तो सिर्फ कितना दिखाऊंगा? 1 lakh. और अगर मैं ट्रेड पेबल दिखाऊंगा तो कितना दिखाऊंगा? 2,50,000. मर्ज करना है दो जिसमें एक जान. 10 लाख, 1 लाख, 250. मेरी बैलेंस शीट रेडी. नोट्स टू अकाउंट बनाते रहना. बना सकते हैं ना रिदिम, कार्तिक, सुयश? Yes, Yes, sir. sir. ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन 3 टू बिगिन विद, क्योंकि इसमें मेरे पास इससे ज्यादा समझाने को
बुझाने को कुछ भी नहीं है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन 5। आज 2 ही क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, तो विल डू इलस्ट्रेशन 5 एंड देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इलस्ट्रेशन 5 मेरी बारी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जल्दी मत कर। हाउ मेनी शेयर्स एक्वायर्ड 3000 इन S Limited. number of shares of S Limited। ये पेपर में इतना डिटेल लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे करके माइंड गेम खेल के टीचर को डायरेक्टली भी बता सकते हो। 1 लाख रुपीस के थे और एक शेयर था ₹20 का, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 50,000. मैथ्स है बेटा, 5000। Sorry. होल्डिंग लिमिटेड ने कितने एक्वायर किए? 3000। होल्डिंग लिमिटेड ने कितने एक्वायर किए? 3000। तो माइनॉरिटी के पास कितने? 2,000. 2000. It means holding and minority are in the ratio of, 3. so their profits, whether pre or post of subsidiary company, will be divided in the ratio of 3:2. my next target. What is the date when I acquired the control or date of acquisition? 1,490. मेरी बारी, जल्दी मत करना। 1st April 19 to 31st March 20. My this balance sheet ends on March 20. It means this financial year would have been started on 1st April 19. Yes, sir. And date of acquisition is also 1st April 19. Date of acquisition is also 1st April 19. It means current year profits will be termed as Post acquisition. and any profit till this date, any profit till this date will be termed as pre-acquisition. किसी को कोई डाउट? बिकॉज मैंने बोला था एनी प्रॉफिट अर्न टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन आर टर्म्ड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। एनी प्रॉफिट्स अर्न्ड टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन आर टर्म्ड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। Now, my turn. H Limited acquired the shares when S Limited subsidiary limited reserves and surplus stood at ₹5,000 and 6,000. And मैंने इसे प्री में क्यों लिखा? Because any profit earned till the date of acquisition are termed as pre-acquisition profits. Now, reserves, closing balances, 20,000. it means current year reserves are 20,000. 15,000. कार्तिक रिदिम कितनी चाटा खाएगा? मैंने नहीं बोला यार उसमें, रिदिम ऐसे नहीं बोलते बेटा, फ्रेंड्स हैं यार, आपस में हो जाती है गलती। ओपनिंग बैलेंस 5, क्लोजिंग 20, तो करंट ईयर का कितना हुआ कार्तिक? 3. सिमिलरली करंट ईयर सरप्लस कितना? 4,000. 10 नहीं बोलोगे? नो सर। मैंने अपने प्रॉफिट्स को प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद देखो मैंने क्या किया, होल्डिंग मिनोरिटी, होल्डिंग मिनोरिटी, होल्डिंग मिनोरिटी, होल्डिंग मिनोरिटी इन द रेशियो ऑफ 3:2. holding minority, holding minority, holding minority, holding minority.
कोई डाउट? कोई डाउट? Okay, my first step, computation of COC. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरी इस कंपनी में एस लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की 90,000 रुपीज में। शेयर कितने खरीदे वो बात की बात है, बट व्हाट इज द ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? 90,000 लेस पेड अप कैपिटल। होल्डिंग के पास कितने शेयर्स हैं? 5,000 हाँ, शेम। होल्डिंग के पास कितने शेयर्स हैं? 3,000 तो यहाँ पे तो होल्डिंग का शेयर ही यूज करूंगा ना बेटा, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 20, लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बताओ होल्डिंग का रिजर्व में कितना शेयर है? 3,000। सरप्लस में कितना शेयर है? 36,000 तो टोटल उसका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो शेयर है उसको भी क्या कर दूं? सो मेरा रिजल्ट अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड गुडविल, विच इज अ इनटेंजिबल एसेट। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, ये देखो, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट में ये कैलकुलेशन दिखा दोगे और इनटेंजिबल एसेट बीइंग गुडविल शो कर दोगे 23,400। कोई डाउट? No, sir, no doubt. Okay, then comes my second point, computation of मिशन इम्पॉसिबल। बोले तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आउटसाइडर। आउटसाइडर के पास कितनी शेयर कैपिटल है? आउटसाइडर के पास कितनी शेयर कैपिटल है? 2,000. ऑफ रुपीज। माइनॉरिटी को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व में कितना शेयर मिला? 2,000 सरप्लस में कितना शेयर मिला? इधर देखो, मैंने 4 जगह डॉट लगा दिए ताकि आप समझ सको, और ये मैंने इसके नीचे डॉट लगाने की बजाय लिख दिया COC, क्योंकि माइनॉरिटी का शेयर, चाहे सुनो ना बेटा, माइनॉरिटी का शेयर चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, दोनों के दोनों कहां दिखाते हैं? बोलो बेटा। Minority interest. थैंक यू। पोस्ट प्रॉफिट्स, चाहे रिजर्व हो चाहे सरप्लस हो। रिजर्व कितना? 6,000। सरप्लस कितना? 1,600। और टोटल कितना? 52,000। And minority interest is shown in the balance sheet under non-controlling interest as minority interest. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये देखो बेटा, बैलेंस शीट में दिखाया गया पेड अप कैपिटल के बाद और अदर लायबिलिटीज से पहले, शेयर होल्डर फंड के बाद और अदर लायबिलिटीज से पहले। कोई डाउट? No, sir. अब मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। इन चीजों को आप न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। बस। तो एसेट साइड पे सिर्फ क्या और दिखाना बाकी है? 3,70,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये देखो, एंड बैलेंस शीट एसेट साइड ओवर। लायबिलिटी साइड पे क्या दिखाना बाकी है? जल्दी मत करना, आप गलती हो सकती है। शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख। जल्दी मत करना। रिजर्व कितना? 9,000 9,000 यानी 69। सरप्लस कितना?
20,000 नहीं, वही जो मैंने लिखवाया था शुरू में, होल्डिंग कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहां दिखाया जाता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। होल्डिंग कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहां दिखाया जाता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। दैट इज द रीजन। ये देखो बेटा, 60 में 9, 16 9, 20 में 24, 22 400, सो टोटल बन गया 91,400 टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। और शेयर कैपिटल तो सिर्फ होल्डिंग की ही दिखाई जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी को तो आपने माइनॉरिटी में ऐड कर दिया और सब्सिडरी का होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज कर लिया। किसी को कोई डाउट? नो सर। सो क्रक्स वही था बच्चों जो सुबह से सिखा रहा था, ताकि इन क्वेश्चन में आपको बेचैनी ना हो, परेशानी ना हो। सो क्रक्स इज, पहले आप होल्डिंग माइनॉरिटी की रेशियो निकालो। क्रक्स नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन के बेसिस पे डिसाइड करो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, एंड देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बल्ले बल्ले। आज के वो लिए क्रेडिटर्स भी शो करेंगे ना? हाँ हाँ प्लीज, अगर मैंने नहीं बोला दैट्स बाय डिफॉल्ट बेटा, दैट्स बाय डिफॉल्ट। आपको लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटी, ये सब तो शो करना ही है। ये रहा, ये देखो। सिर्फ कौन सी चीजें हटानी है? इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरी कंपनी की पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। धीरे धीरे और चीजें आएंगी और सीखेंगे जो हमने आपको पॉइंट लिखवाए थे। टिल देन बाय बाय, शुभ रात्रि, शपथ है आप लोग जाना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे आग बुझाओ आग लगाओ। टिल देन बाय बाय।